Today, today we are online here to discuss how to get the China government scholarships. And today we have joined a resource person from. She is a Pakistani student. She is doing his masters in artificial intelligence at the University of Science and Technology, China. So hope you all will understand the procedure and about the how to apply for the China government scholarship and how to get the Chinese scholarship and what are the procedures and what are the requirements and how you can proceed for your masters and PhD. So, Madam Amna, welcome in this program, and we are really thankful to you for your precious time for our students. And I'm really thankful on the behalf of ICE student chapter. ICE is the Institute of Civil Engineers UK chapter at Mehran University, Shahi Zulfikar Ali Bhutto, Khairpur Miras campus. And I'm Dr. Sajad Ali Mangi, your host. Now I would like to formally start our session. So Ms. Amna, you can continue and you can introduce yourself first and then please tell us what are the procedure for the how students can apply and what are the legal requirement and what are the protocols for achieving the masters and PhD scholarships. Thank you very much. Thank you so much for inviting me to this session. Okay, first of all, I am going to introduce myself. Am I audible? I'm audible, right? Yes, yes, okay, you are audible. Yeah. So my name is Amna, and I have done my bachelor's from Kairouan University of Engineering, Science, and Technology, that is in Nawabshah, and my major was computer systems engineering. After that, I have applied in master's at University of Science and Technology, China, and my major is artificial intelligence and robotics. So I am going to share the screen for the procedure so students can better understand. Okay, perfect. So Chinese government scholarship. Basically, we apply for Chinese government scholarship for bachelor's, master's, and PhD. All right. So we can apply in all three for all three majors. So if someone wants to apply for bachelor's or master's or PhD, Chinese government scholarship is all there. So सबसे पहला टॉपिक जो हम इनकाउंटर करते हैं दैट इज़ वाई चाइना. अगर हम किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू यूरोप, वी आर गोइंग टू अमेरिका, कनाडा और चाइना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और द क्वेश्चन दैट कम्स फर्स्ट इन आवर माइंड इज व्हाई दैट पर्टिकुलर कंट्री. So first of all, I'm going to answer this why, like why China, what are the advantages, and then we will go to the rest of the topic. So why China? Okay. So अगर हम देखें तो चाइना में स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा हैं. हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं इन चाइना. एंड जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ अगर हम कनाडा को टारगेट कर रहे हैं, अगर हम अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, अगर हम यूरोप को टारगेट कर रहे हैं, सो वी नीड इज आयल्स, GRE, सेट. दीज आर द इंग्लिश टेस्ट जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मतलब किसी भी ऐसे कंट्री को टारगेट करने के लिए जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं. और बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप के लिए इसलिए अप्लाई नहीं करते बिकॉज दे डोंट हैव आयल्स, दे can't like apply for GRE because of their high fees and set. So चाइना में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ये रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास हम जो है इन चीज़ों को हटा के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं. And the third advantage is learn Chinese language. When we are going to China, we will have the opportunity to learn Chinese language. And ये बहुत ही like if you see तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा advantage है हमारे लिए. So अगर हम चाइनीज़ लैंग्वेज को देखें दैट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. ठीक है. अब जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो सिर्फ चाइना में नहीं बोली जाती. पीपल स्पीक चाइनीज़ लैंग्वेज इन नॉट रशिया, मलेशिया, ताइवान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपीन,
and so on. There are many other countries too. और जैसे कि हमें पता है चाइना की जो पॉपुलेशन है दैट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लाइक चाइना इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर कंट्री. सो चाइना चाइनीज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है. और दूसरी बात, जैसे कि अभी चाइना जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, सीपेक की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अभी पाकिस्तान में ओपन हुए हैं. तो इस वजह से भी अगर हम किसी चाइनीज़ कंपनी में जॉब कर रहे हैं और हमें चाइनीज़ आती है तो हमारे पास एज है, ठीक है. और communication with billion of people and making friends and so on. So these are the advantages of learning Chinese language. Apart from that, cheap living expense. चाइना में जो expense है वो बहुत ही ज़्यादा कम है. और उसके अलावा it is one of the largest emerging economies, like on the second number in the world after USA. और उसके अलावा आई वुड से कि चाइनीज़ एजुकेशन, चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिसर्च में बहुत ज़्यादा आगे हैं. अगर हम देखें ये जो लिस्ट है दैट इज़ लाइक टॉप 10 चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़, और इनकी अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो आप देखें शिंखुआ यूनिवर्सिटीज़ ऑन 9th नंबर, and so is Peking 22, Shanghai Jiaotong University 26, Zhejiang University is 32, and Fudan University is 50, and USTC, that is my university, on 67. So ये देखें मतलब चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप 10 में हैं, और इनमें से C9 लीग बनती है चाइना की. सो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ये था कि जो चाइना की रिसर्च है दैट इज़ ऑन नंबर वन आई गेस, आई एम नॉट रॉन्ग. सो चाइना जो है रिसर्च में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, और चाइना की प्रोग्रेस की जो वजह है वो यही है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट को इम्पोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने जो कंट्री में स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं. इस वजह से चाइना रिसर्च में बहुत आगे जा रहा है. अब हम फॉर्मली सेशन की तरफ बढ़ते हैं. सो CSE है क्या, ठीक है. CSE इज चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, और ये चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है विच इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट्स फॉर इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सचेंज विद चाइना. सो CSE एक नाम है, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, जिसके थ्रू हम फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप चाइना में अप्लाई करते हैं. इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर बैचलर्स, फॉर मास्टर्स और फॉर PhD, यू कैन अप्लाई थ्रू CSE. ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू अप्लाई. सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने का. सो द नंबर 1 पॉइंट इज एप्लीकेंट्स मस्ट बी नॉन सिटीजन. ऑफ कोर्स नॉन सिटीजन होने चाहिए, चाइनीज सिटीजनशिप उनके पास नहीं होनी चाहिए, एंड शुड बी इन गुड हेल्थ. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ आते हैं. अगर हम बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो द एज शुड बी अंडर 25, and for masters should be under 35, and for PhD it should be under 40. So this is the basic criteria. ये हर जगह पे ही फॉलो होता है. नाउ स्कॉलरशिप फंडिंग. अब हमारी जो स्कॉलरशिप है वो क्या क्या चीज़ें कवर कर रही है. जब हम CSE की बात कर रहे हैं तो CSE में कैटेगरीज होती हैं. अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही है, और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. हमारी जो ट्यूशन फीस होती है वो ख़त्म होती है, ठीक है. जो भी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी है, फॉर एग्जांपल माई यूनिवर्सिटी 30,000 RMB पर ईयर, ठीक है. तो 30,000 RMB हमें नहीं पे करने पड़ेंगे. उसके अलावा जो भी लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, हमारी लेबॉर्ट्री में जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर जो भी एक्सपेंस आ रहा है वो हम पे नहीं करेंगे. जो इंटर्नशिप्स, अब फॉर एग्जांपल इन माय कंट्री, सॉरी इन माय सिटी, दैट इज़ हाफे, मेरी जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ USTC, इट इज़ इन हाफे. सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं. अब बहुत जगहों पे ऐसे होता है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है मास्टर्स का फर्स्ट ईयर, उसमें हम कोर्स वर्क करते हैं, और बाकी के 2 ईयर्स हम रिसर्च करते हैं, ठीक है. और अगर हाँ, अगर ऐसा है कोई स्टूडेंट रिसर्च नहीं करना चाहता, तो बहुत रेयर केसेस में ये होता है कि उनको इंटर्नशिप अलाउ कर देते हैं. तो मेरे सिटी में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जहाँ पे वन कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप. सो हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उनकी जो कॉस्ट होगी वो हम पे नहीं करेंगे, जो टेक्स्ट बुक होंगे वो हम पे नहीं करेंगे, जो भी टेक्स्ट बुक रिक्वायर्ड होंगे वो हमारी यूनिवर्सिटी हमें पे करेगी, बिकॉज वी आर ऑन CSE. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन ऑन कैंपस डॉर्मेट्री में आपको फ्री मिलती है. फॉर मास्टर्स 2% इन 1 रूम,
सिंगल रूम होता है, उसमें 2 लोग जो हैं वो अलाउ करते हैं। उसके अलावा फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स सिंगल रूम, सिंगल पर्सन और मंथली अलाउंस। अब जो मंथली अलाउंस है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को वो 2500 RMB मिलता है। 2500 RMB इज़ लाइक 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ या 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़। और अगर हम मास्टर्स स्टूडेंट का देखें दैट इज़ 3000 RMB। 3000 RMB इज़ 67 अभी के रेट के हिसाब से 67,000 रुपीज़। और 3500 जो है युआन वो पीएचडी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। अब ये जो स्टाइपेंड है, ठीक है, ये इतना होता है कि आप वहाँ पे आराम से रह सकते हैं किसी भी सिटी में, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप घूमने कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, और शॉपिंग कर सकते हैं, बट इन अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। मतलब एक लिमिट में रह के आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि ये इनफ अमाउंट है रहने के लिए, ठीक है, कहीं भी रहने के लिए ये एक इनफ अमाउंट है, आप सेव कर सकते हैं पैसे, ठीक है, अगर आपको घर को सपोर्ट करना है तो आप उसमें से कर सकते हैं। तो ये जो है इसी वजह से जो मेरा पहला पॉइंट था कि लिविंग एक्सपेंस कम है चाइना में, तो उसका मतलब ये था कि हमारी हमारी हर चीज़ फ्री है, ठीक है, हमारी ट्यूशन फीस फ्री है, हमारे बुक्स फ्री है, हमारी डॉर्मेट्री फ्री है, अकोमोडेशन वगैरह हमें मिल रही है, हमें पैसे मिल रहे हैं खाने के लिए, उनमें आमना, से हमारे हमारे सेव हुए हैं। जी। हम सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें हम्म एक चीज़ मज़ीद क्लियर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स को, जो इनिशियल उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, क्या वो स्कॉलरशिप के अंडर आती है या वो खुद पे करनी पड़ती है? और दूसरी चीज़ जो एयर फेयर है, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, अगर कोई मास्टर्स करने जाता है तो हम्म उसको खुद एयर टिकट बियर करनी पड़ेगी, या एक या दो मरतबा वो अंडर स्कॉलरशिप आती हैं एयर फेयर? ठीक है, मैं कर देती हूँ। अच्छा, चाइना में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी इनिशियल फ़ी होती है, ठीक है, जब हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ़ी जो है वो यूनिवर्सिटी को पहले ही पे करनी पड़ती है जब हम अप्लाई करते हैं। फिर उसमें हमारा एडमिशन हो रहा है, नहीं हो रहा, दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है। लेकिन वो काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ उनको उनकी उनकी फ़ीस नहीं होती, इनिशियली फ़ीस नहीं होती अप्लाई करने की, ठीक है। जब आपका एडमिशन होता है तब भी कोई फ़ीस नहीं होती। लेकिन हाँ, जब यहाँ पर पाकिस्तान में आप अपना प्रोसेस करवाते हो, प्रोसीजर जो भी है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपको अपनी जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो HEC से सर्टिफाई करवानी है, वो जो फ़ीस वगैरह होती है वो आपको खुद पे करनी पड़ती है। उसके अलावा जो वीज़ा फ़ीस है वो आपको खुद पे करनी पड़ती है, वो चाइना आपको प्रोवाइड नहीं करता, वो स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड नहीं होती। और कुछ स्कॉलरशिप चाइना की ऐसी हैं जिनमें आपको एक राउंड टिकट मिलता है, लाइक जब आप चाइना जाते हो और फिर जब लास्ट टाइम आप वापस आओगे डिग्री कंप्लीट करके, तो वो आपको एक जो है एक फ़्लाइट राउंड ट्रिप मिलता है, ठीक है। लेकिन वो भी कुछ स्कॉलरशिप्स में होता है, सर्टेन स्कॉलरशिप्स हैं। बाकी जो अगर मतलब जैसे मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बात कर रही हूँ, उसमें जो है वो एयर फेयर इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको खुद फर्स्ट टाइम बेयर करना पड़ता है। उसके बाद जब आप चाइना में होते हो तो आप मैनेज कर लेते हो, लाइक अगर आपको आना है वंस अ ईयर और ट्वाइस अ ईयर तो आप कर लोगे अपने स्टाइपेंड में से, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको खुद करना पड़ता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है मेडिकल इंश्योरेंस आपको CSC प्रोवाइड करता है। सो ये बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप के। अब ये स्कॉलरशिप्स अनाउंस कब होती हैं? ये स्कॉलरशिप बेसिकली अनाउंस होती हैं जनवरी से, हर साल जनवरी से ये स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं और ये मार्च मिड ऑफ मार्च या अप्रैल तक जाती हैं, ठीक है, CSC की स्कॉलरशिप्स। या कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि नवंबर और दिसंबर में भी अनाउंस कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेनली फ्रॉम जनवरी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो नवंबर और दिसंबर से अनाउंस करती हैं। और इनकी जो डेडलाइन है वो मोस्टली लाइक मिड ऑफ मार्च या अप्रैल तक होती है, और जो CSC की यानी CGS की डेडलाइन है। लेकिन कुछ जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हो गई, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हो गई, तो उनकी वेरी करती है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी उनकी वेरी करती है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लाइक कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। सो स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का जो एक तरीका होता है, जो बहुत ही जनरल तरीका है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट क्या करेंगे, आपको
सितंबर से प्रोफेसर से कांटेक्ट करना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। सितंबर से जैसे अभी 2020 का सितंबर आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी मतलब नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाहते हैं वो इस सितंबर से प्रोफेसर से कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, सितंबर ऑनवर्ड्स, सितंबर या अक्टूबर से, ठीक है। हम लोग जो है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पहले आप यूनिवर्सिटीज डिसाइड कर लो आपको किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैंने चूज कर ली, मेरे पास 5 हैं ऑन लिस्ट, ठीक है। मैंने 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है चाइना में। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। तो CSE में आप 3 यूनिवर्सिटीज में मैक्स अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा 2 जो है हमारे पास जो वो दूसरी स्कॉलरशिप्स होती हैं, ठीक है, उनमें आप 2 अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो आप जितनी भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। सो अब आपको पहले जो करना होगा वो ये होगा कि आपने पहले लिस्ट बनानी है कि मुझे इन इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, क्योंकि चाइना की 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CSE प्रोवाइड करती हैं, CSE स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, अनाउंस करती हैं हर साल 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़। तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से एक लिस्ट बनाओ 5 यूनिवर्सिटीज़ की कि मुझे इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आप का जो मेजर है, फॉर एग्जाम्पल माई मेजर इज़ कंप्यूटर्स, ठीक है। मैं कंप्यूटर के प्रोफेसर्स को सर्च करूंगी इंटरनेट पे, गूगल पे आप जाके उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, साथ में प्रोफेसर्स लिखो, तो प्रोफेसर या डिपार्टमेंट आपका ओपन हो जाएगा। उन प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है। अप्रोच कैसे करना है? आपने पहले उन प्रोफेसर्स का रिसर्च एरिया देखना है। आप किस, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर्स, लेकिन कंप्यूटर एक वास्ट फील्ड है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डोमेन्स निकलती हैं। अब मेरा इंटरेस्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। सो मुझे वही वाले प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है जो कि मेरी फील्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं, जिनका रिसर्च एरिया मुझसे मैच हो रहा है, ठीक है। मैं उन प्रोफेसर्स को ईमेल करूंगी, पहले उनका रिसर्च एरिया देखना है, फुल्ली अगर मैच कर रहा है आपको उनको कांटेक्ट करना है, ईमेल के थ्रू अपनी रेज्यूमे अटैच करनी है और उनको कहना है कि आई वांट टू डू मास्टर्स अंडर योर सुपरविजन और PhD, ठीक है। तो आपने उनको इस तरह से अप्रोच करना है और बहुत ही अच्छी ईमेल ड्राफ्ट करके उनको ईमेल सेंड करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे डिपार्टमेंट में अगर 50 प्लस प्रोफेसर्स हैं तो 50 प्लस प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि प्रोफेसर्स जो होते हैं वो यूजुअली एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली लाइक एक केस मैंने सुना कि एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर को बता रहा था कि मेरे पास ये स्टूडेंट की ईमेल आई है, दूसरे ने भी यही कहा। तो मतलब एक तो इमेज इस चीज़ से अच्छा नहीं बन रहा कि आप जो है सारे प्रोफेसर्स को ईमेल कर रहे हो साथ, और CC तो कभी भी नहीं करना, ठीक है, CC नहीं करना। और आपने डिफरेंट प्रोफेसर्स को अलग अलग ईमेल ड्राफ्ट करनी है और अलग अलग तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। सो जब आपको प्रोफेसर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपको देगा एक्सेप्टेंस लेटर। अब एक्सेप्टेंस लेटर एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है अप्लाई करने के लिए, लेकिन उसका अगर एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास है किसी यूनिवर्सिटी का, फॉर एग्जांपल माय यूनिवर्सिटी इज USTC, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना, ठीक है। अगर इस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई करना चाहती हूँ और मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर है, एक प्रोफेसर का कंसेंट है कि हाँ मैं स्टूडेंट को लेना चाहता हूँ, सो CSE मतलब मेरा ना वेट बढ़ जाएगा उस मतलब मेरी एप्लीकेशन का। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी स्कॉलरशिप पे, सही है। तो आपने अगर अप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर तो आपने अक्टूबर से सितंबर एंड से आपने प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है। उसके बाद ये होगा कि अब आपने अप्रोच कर लिया, आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। अब आपने जब आप देखेंगे उस जब आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन ओपन कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास USTC से एक्सेप्टेंस लेटर है, अब आप देखेंगे USTC ने एडमिशन ओपन किए हैं जनवरी में आप अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि आपने पहले CSE फॉर्म फिल करना होता है। CSE फॉर्म इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा, यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस से अपना अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पर एक फॉर्म होता है जो कि आपने फिल करना होता है। ये चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट है जहाँ पे आपने जाके पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ पे जाके आपने अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और फॉर्म फिल करते हुए आपने उस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर देना है जिस एजेंसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट एजेंसी नंबर होता है, वो एजेंसी नंबर आपको गूगल पे लिस्ट मिल जाएगी या एंड में मैं आपको एक ग्रुप बताऊंगी फेसबुक पे, वहाँ पे हर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है।
तो जब आपने CSE फॉर्म फिल कर लिया, उसको डाउनलोड करके अपने पास रखना है। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर भी अपना अकाउंट बनाना है और वहाँ पर भी एक फॉर्म फिल करना है। ठीक है, आपने बेसिकली 2 फॉर्म फिल करने होते हैं, एक CSE की वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना है, एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना है, 2 फॉर्म फिल करने हैं। वो दोनों फॉर्म्स डाउनलोड करके आपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ डिस्पैच करना है उस यूनिवर्सिटी को। ठीक है, किसी भी सर्विस के थ्रू, DHL या FedEx या पाकिस्तान पोस्ट। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से रिक्वायर्ड हैं? आपको आपकी डिग्री रिक्वायर्ड होती है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो आपको रिक्वायर्ड होती है। एंड द आमना, बेस्ट थिंग इज, अगर आप अपनी सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। ये जो कोरियर के थ्रू डिस्पैच करना है वो CSE वालों को भेजना है या यूनिवर्सिटी को भेजना है? ठीक है, जो अपने फॉर्म्स भेजने होते हैं वो यूनिवर्सिटी को आपने डिस्पैच करने होते हैं, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को। फॉर एग्जांपल USTC में आपने अप्लाई किया है, CSE में आपने एजेंसी नंबर USTC का दिए है, तो आपने USTC का फॉर्म, CSE वाला फॉर्म जिसमें आपने एजेंसी नंबर USTC का दिया था, और ये सारे फॉर्म्स जो अभी मैं डिस्क्राइब करने लगी हूँ, वो सारे फॉर्म आपने उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को डिस्पैच करने होते हैं और उसका एड्रेस आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाता है। अच्छा, फॉर्म्स में आपको डिग्री चाहिए होती है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, और एक अच्छी चीज़ ये है कि आप जो अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो HEC से वेरीफाई करवा ले, और PEC से तो बेहतर है, करवानी चाहिए एक्चुअली। सो यस, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, और उसके बाद आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज स्टडी प्लान। ठीक है, अच्छा, आपका CGPA मैटर करता है। ठीक है, मैटर करता है। 3.5 या 3 से अबव है तो इट्स गुड। ठीक है, लेकिन आप CGPA की वजह से कभी भी ऐसा मत करें कि मैं अप्लाई ना करूं। ठीक है, CGPA मैटर करता है लेकिन आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, 2.5 मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है 2.5 या 3 से अबव हो। सो यस, स्टडी प्लान एंड रिसर्च प्लान। ये जो है स्टडी प्लान, उसके बहुत ज़्यादा वेज हैं लिखने के कि मतलब अगर आप गूगल पे देखें, या एक ग्रुप है सिंधी स्टूडेंट्स इन चाइना फेसबुक पे, बहुत ही अच्छा ग्रुप है, उसमें हर डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सी चीज़ किस तरह से करनी है, वो वहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। ठीक है, वहाँ पर आप लोग जाएं, वहाँ पे सर्च करें, वहाँ पर स्टडी प्लान के बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे हर फील्ड से रिलेटेड। आई होप सो। तो वहाँ पर आप देखें जाके स्टडी प्लान किस तरह से लिखना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टडी प्लान लिख रही हूँ तो उसमें क्या क्या मतलब पहले टॉपिक में आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपने बताना है कि क्या आपने स्टडी की है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, आपका जो FYP था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, वो किस चीज़ पे था, किस तरह से आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको ही आप इन्हेंस करके मास्टर्स आप किस फील्ड में करना चाहते हैं, उससे चाइना को क्या बेनिफिट होगा, उसको उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होगा, आप क्या नया ला रहे हैं, क्या आप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें बेसिकली आपने ड्राफ्ट करनी होती है अपने स्टडी प्लान में। बेसिकली आपने बताना होता है कि आप अपनी स्टडी किस तरह से प्लान कर रहे हैं। उसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर्स। अब रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो हमारी जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी है, जैसे मेरी बैचलर्स की यूनिवर्सिटी है क्वेस्ट, ठीक है, वहाँ के 2 प्रोफेसर से मैंने रिकमेंडेशन लेटर्स लेने हैं। ठीक है, वो असिस्टेंट ना हो तो बेहतर है, एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स, फुल टाइम प्रोफेसर्स होने चाहिए। ठीक है, एसोसिएट या फुल टाइम प्रोफेसर्स होने चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स लेने होते हैं। वो प्रोफेसर जो आपको अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, उनसे आप 2 रिकमेंडेशन लेटर्स ले सकते हैं। उनका स्टैंप लगेगा, उनका साइन होगा, एंड देन आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद एक फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है जो कि वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ है, गूगल पे भी पड़ा हुआ है। ठीक है, CSE की वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ है। वो आपको किसी भी डॉक्टर से जाके उसको अपना चेकअप करवा के, साइन वगैरह करवा के, फिल करवा के साइन करवाना होता है MS से। उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ गुड टू हैव। पासपोर्ट आपको चाहिए, पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए। उसके बाद जो मैंने पहले आपको बताया कि जैसे चाइना में रिक्वायरमेंट नहीं है IELTS की, SAT की या फिर GRE की,
हम इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं होती चाइना में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि मैंने आपको पीछे लिस्ट दिखाई थी, उनमें ऐसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास आइल्स हो। सो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट यूज़ होता है। उसके अलावा एक्सेप्टेंस लेटर, ये भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये जो है आपकी एप्लीकेशन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है। सो ये जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स ये आपके पास अवेलेबल होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास अगर पूरी हैं, उसके बाद आप जनवरी में अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हैं। आपने पहले सीएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे फॉर्म फिल करना है, वो दोनों फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके साथ अटैच करने हैं और यूनिवर्सिटी को पार्सल सेंड कर देना है, टीसीएस या कोई भी सर्विस। उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो आता है एंड ऑफ जून या जुलाई में। उसके बाद आपको अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना होता है एंड देन एंड ऑफ अगस्त या सितंबर के स्टार्ट में आपको चाइना लैंड करना होता है। यस, ये सारा प्रोसेस है Thank you, Amna. Very good अबाउट presentation. चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। Thank you, Amna. Very good presentation. And I have noted all the things almost, and it is very easy process. I think it is not a very difficult process. And now we can entertain the questions of different students. So please take the questions. And can you see the श्योर, chat box? जस्ट अ सेकंड। यस, So start from Muhammad Hasib. Muhammad Hasib is asking, hi, I want to ask, is it possible to work part-time during study? ठीक है। चाइना में वर्क अलाउ नहीं होता, क्योंकि एक तो ये है कि आपको ज़रूरत भी नहीं होती। जितने पैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मिलते हैं, तो उसमें अगर एक Amna, we have अगर minutes. एक इंडिविजुअल We जी have last 10 minutes. So after that, we will, after 5 minutes, we can log in again. क्योंकि जूम में 40 ओके मिनट की मीटिंग होती है, तो ये 10 मिनट हैं हमारे पास, हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को एंटरटेन करते हैं और फिर हम अगेन वापस आते हैं 5-10 मिनट बाद, 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद। ओके श्योर श्योर ओके ओके, ओके। थैंक यू। सो तो प्लीज हाँ, कंटिन्यू। सो पार्ट टाइम वर्क अलाउ नहीं होता चाइना में। बाकी ये है कि आप इंटर्नशिप्स वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको इंटर्नशिप्स के कंपनी पैसे नहीं देती, क्योंकि आपको अपना स्टाइपेंड मंथली मिल रहा होता है। लेकिन हाँ, आफ्टर योर स्टडीज़ यू कैन वर्क इन चाइना, मतलब आप वर्किंग वीज़ा पे आके, क्योंकि पहले आप स्टडी वीज़ा पे होते हो, स्टडी वीज़ा में आपको वर्क अलाउ नहीं होता चाइना में। और जैसे यूरोप या अमेरिका में है, तो चाइना में अलाउ नहीं होता आपको। Yes, Amna, another question is from does CAC offer full-time master's degree in English language also? ओके, सो इसका मैं इस तरह से ओके, जो अगर हम बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैचलर्स की जो पूरी जो डिग्री होती है ना, वो चाइनीज़ में होती है। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज़ में होती है। जो मास्टर्स और पीएचडी है, उनमें जो आपका जो आपका मेजर होता है, वो इंग्लिश में भी हो सकता है और वो चाइनीज़ में भी हो सकता है। लेकिन मतलब क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज, मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक मैंने ऐसा केस सुना था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मैंने एक केस सुना था जिसमें मास्टर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज पूरा हो रहा था। बट आई विल कंफर्म दैट एंड आई विल लेट यू नो, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अच्छा, मेहरबानी बताना। हेलो, आर यू देयर? Yes, another question that Fida Hussain, ma'am, still we have one semester left. Can we try for acceptance letter?
ठीक है। जी बिल्कुल, अगर आपके पास आपका लास्ट सेमेस्टर है और जैसे दिसंबर में आपकी डिग्री कंप्लीट होनी है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इवन आई हैव अ क्लासमेट जिसको डिग्री भी नहीं मिली थी बट ही वाज स्टडिंग विद मी, और उसने जो है अपनी यूनिवर्सिटी से कोई सर्टिफिकेट निकलवाया था, दैट इज लाइक पास सर्टिफिकेट। उसकी बेसिस पे उसने अप्लाई किया था। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, और अगर आप पास आउट भी हो जाते हैं, आपको डिग्री नहीं मिलती, थोड़ा लेट है एक सेमेस्टर जैसे अक्सर यूनिवर्सिटीज में होता है, तब भी आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। Another question from Mohammad Matiullah. Please, ma'am, tell us appointment CSC group on Facebook. जी, ग्रुप का नाम है सिंधी स्टूडेंट्स इन चाइना। अगर आप इस नेम से सर्च करेंगे तो एक ग्रुप आएगा, वही है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग लोग हैं। मैंने वहीं से सारा प्रोसेस देखा था। वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। उनके फाइल सेक्शन में जाएं, वहाँ पर आपको रिकमेंडेशन लेटर के सैंपल्स मिल जाएंगे, स्टडी प्लान के सैंपल्स मिल जाएंगे, एक्सेप्टेंस लेटर के सैंपल्स मिल जाएंगे, ईपीसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वहाँ पर आपको मेडिकल फॉर्म मिल जाएगा। आपको वहाँ पर ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगी जो भी इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है वहाँ पर आप अपनी क्यूरी पोस्ट करें, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पिंग लोग हैं जो कि आपको आंसर कर देंगे वहाँ पे। सिंधी स्टूडेंट्स इन चाइना। So another student from SSE, the name is not clear, that मैम ये बताएं कि वहाँ लैंग्वेज का फूड का कितना इशू होता है, बिकॉज हम मुस्लिम हैं और वहाँ पर जितना मैं जानता हूँ किसी भी होटल पर मतलब ये पूछना चाह रहा है कि हलाल फूड और इतना इशू है कि नहीं। भाई मैं भी मुसलमान हूँ। तो वहाँ पर लैंग्वेज का इशू शुरू में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती और उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती मोस्टली लोगों की। तो तो अनदर यस, लैंग्वेज का तो इशू, ये लैंग्वेज का इशू होगा और फूड का इशू होगा, बट यू नीड टू बिकम गुड कुक। तो आप अपना बनाएं और अपना खाएं क्योंकि मैं भी लेकिन ये मलेशिया, है कि हर सिटी ये में भले भले मुस्लिम कंट्री में आप जाएं मैडम, मैंने मलेशिया से किया हुआ है पीएचडी, तो मलेशिया में भी भले इवन मलेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री, मगर डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट कुकिंग स्टाइल होता है, तो वो आप लाइक नहीं करते। तो ये है कि आप खुद कुकिंग करो और खुद बनाओ और खुद खाओ। सो another question from एग्जैक्टली। Muhammad Hasib. Since we are civil engineering students, can you please suggest the best university for master's program? ओके, ओके, आई हैव अ लिस्ट जिसमें हर सब्जेक्ट के लिहाज से उन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है। वो मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी, आप पोस्ट कर दें। और उसमें जो है मतलब हर सब्जेक्ट के हिसाब से यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो सिविल के हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग के Yes, हिसाब से yes. देख लीजिएगा। इवन गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। और जो पिछला सवाल था, तो मैं ये बता दूं कि हर जो सिटी है उसमें हलाल रेस्टोरेंट्स होते हैं। इवन चाइनीज रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा चाइनीज मुस्लिम्स होते हैं, तो हलाल रेस्टोरेंट्स पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट हर सिटी में होते हैं ऑलमोस्ट। तो मसला नहीं होता अगर आप कुक नहीं कर सकते। Another question from Sikandar Ali. They will teach in which language, English or Chinese? अगर आप मास्टर्स या पीएचडी में हैं और आपका अगर मेजर जो है वो इंग्लिश है तो ऑफकोर्स इंग्लिश में, अगर चाइनीज़ है तो चाइनीज़ में। लेकिन जिनका मेजर चाइनीज़ होता है उनको एक साल चाइनीज़ पढ़ाते हैं तो आपको समझ आ जाती है। So another question that it is mandatory to learn Chinese language for CSE scholarship. डिपेंड्स। अगर आपका मेजर चाइनीज़ है तो आपको एक साल पढ़नी पड़ेगी। अगर आपका मेजर इंग्लिश है तो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, पर वो एक साल नहीं होती। वो आपको स्टडी के दौरान मतलब कुछ क्लासेस होती हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं, वो क्योंकि आप अपना कल्चर आपके साथ शो करना चाहते हैं और आपको लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, तो पढ़नी होती है। लेकिन लाजमी नहीं है मैंडेटरी हो। कुछ मतलब जैसे मेरी स्कॉलरशिप है उसमें मैंडेटरी थी, मैंने एक साल पढ़ी है और मैंने HSK 5 क्लियर किया है। उसका तो पेपर भी होता है इंग्लिश चाइनीज का। चाइनीज का, जी। Yes. Oh, लेकिन एक साल जब आपको पढ़ाते हैं तो आप पेपर दे सकते हैं। जैसे ओके, आइल्स में जैसे बैंड्स होते हैं, 9 बैंड्स है हमारे पास, ठीक है। तो जो चाइनीज लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं HSK, और उसमें 6 लेवल्स होती हैं, ठीक है। जो मोस्ट डिफिकल्ट लेवल है वो 6 लेवल है, ठीक है, HSK 6। तो जो मेरी डिग्री की रिक्वायरमेंट थी दैट वाज HSK 5, सो आई हैव क्लियर्ड HSK 5 बाय स्टडिंग 1 ईयर।
चाइनीज लैंग्वेज, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, आप कर लेते हैं। ओके, मलेशिया में ये है कि मलेशिया में भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे ऑप्शनल है मगर कहीं पे कंपलसरी है। बिल्कुल ऐसे ही। So another question from Muhammad Matiullah, also tell us how to approach Chinese professor. As you said, we don't have to send same email to all professors. Uh, ओके, yes. सो सभी स्टूडेंट्स इन चाइना में के ग्रुप में सॉरी ईमेल लिखने के पूरे वेज हैं, किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो। अगर मैं आपको बता दूं 1 मिनट रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट, तो हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, लेकिन मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब पहले आपने उस प्रोफेसर का रिसर्च एरिया ज़रूर देखना है, ठीक है। अगर आपके साथ मैच करता है, जैसे मैं कंप्यूटर्स की हूँ, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। मैंने जब कंप्यूटर डिपार्टमेंट देखा यूएसटीसी का, तो उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट प्रोफेसर्स थे। तो जो मेरा रिसर्च एरिया है दैट इज रोबोटिक्स, ठीक है। तो मैंने रोबोटिक्स के प्रोफेसर देखे। अब रोबोटिक्स के प्रोफेसर भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे काम करें, कोई हार्डवेयर पे कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर पे कर रहा है, कोई किसी मतलब डोमेन में कर रहा है। तो आपने अपना पहले रिसर्च एरिया देखना है और प्रोफेसर का रिसर्च एरिया देखना है। अगर मैच करे, आपने उस प्रोफेसर को कन्विंस करना है बाय राइटिंग योर ईमेल कि आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपने उसका ये वाला पेपर पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई उसका पेपर पढ़ा है या उसका रिसर्च एरिया देखा है, आपने उसको डिफाइन करना है ताकि प्रोफेसर को पता चले कि आप आपको नॉलेज है उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। लेस देन 1 मिनट, सो वी Thank शुड you. कनेक्ट। We will come back after 10-minute rest. श्योर। Okay. Thank you.